ये नया दिन जो पयामे बहार लाया है, ये नया दिन जो पयामे बहार लाया है, हर एक चेहरे पे जैसे निखार लाया है। First of all, a very good afternoon to all of you. May I have the honor to invite Honorable Vice Chancellor Professor D.S. Chauhan sir to grace the seat on the dais. Sir, I request you to grace the seat on the dais. Pro Vice Chancellor Professor A.M. Agrawal sir, Controller of Examination Professor P.N. Maheshwari sir, Treasurer and Secretary Society Shri Neeraj Agrawal sir, Director IPR Professor Pradeep Kumar Mishra sir, Director IAH Professor Anup Kumar Gupta sir, Registrar of the University Shri Ashok Kumar Singh sir. Honorable Vice Chancellor Professor D.S. Chauhan sir, Pro Vice Chancellor Professor A.M. Agrawal sir, Controller of Examination Professor P.N. Maheshwari sir, Treasurer and Secretary Society Shri Neeraj Agrawal sir, Member of Executive Council Mr. Vivek Agrawal. He is not there. My wishes are there with him. My voice is reaching him, I know. Director IPR Professor Pradeep Kumar Mishra sir, Director IAH Professor Anup Kumar Gupta sir, Registrar of the University Shri Ashok Kumar Singh sir, all the heads of various departments, all the distinguished authorities of the university, my respected and friendly colleagues, and my dear new buds in the orchard of GLA University. It's my proud privilege to welcome all of you to our GLA family. Today is the day we begin to learn to look through the eyes of others, to find out and experience what the world is like for them. It's also the day we grow bigger than our differences and offer to everyone, regardless of historical rights and wrongs, a friendly welcome and outstretched hand. Today, during this orientation, all of you will be made aware of opportunities to be socially integrated into the college culture, to make your comfortable stay at the university. But before starting, we take blessings of Goddess Saraswati by a Saraswati Vandana.
principals of the university sitting with me, and very dear colleagues from the different departments, and those who have faith in the system of the GLA, and those parents who have faith in GLA, that the future of their wards will be secure through education, and ultimately they will have some kind of destination which is desired for. Anything you ask anyone, but the one thing you have to ask yourself. You want to please yourself, or you want to please all who wanted to see you pleased? आप स्वयं को बहुत खुश देखना चाहते हैं या उन सभी को खुश देखना चाहते हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं? सबसे पहले जहाँ से आप आए हैं अपने माता पिता का चिंतन करो कि वे कैसे खुश होंगे। यदि आपके मार्क्स कम आए तब खुश होंगे कि ज़्यादा आए तब खुश होंगे? यदि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले तब खुश होंगे कि आपको नौकरी न मिले तब खुश होंगे? ये सारे के सारे प्रश्न अपने से पूछो। गीता कहती है कि संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो आप स्वयं हो। आत्मनः बंधु आत्मनः रिपुरात्मनः। आप अपने सबसे बड़े मित्र हो और सबसे बड़े शत्रु हो। यदि 4 वर्ष के अंदर आपने अपने को शत्रुवत व्यवहार किया कि मैं अपने जीवन में दुखी रहूंगा और सबको दुखी करूंगा जिन्होंने मुझे पैदा किया है, एक तो रास्ता यह है, और दूसरा रास्ता यह है कि मैं खुद भी खुश रहूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि मैं भी मस्त रहूं और जिन्होंने मुझे पैदा किया है वो कह सकेगा हाँ मेरा बेटा ऐसा है। हमारे परीक्षा नियंत्रक ने कहा है 85% बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 85% बच्चे यहाँ के हमारे परीक्षा नियंत्रक आपसे खुश हैं, और मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसी कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ का इतना सेटिस्फैक्शन लेवल इतना ऊंचा हो। लेकिन 15% के कारण GLA का जो गेट है वहाँ का जो सबसे पहला व्यक्ति जो दुखी वहाँ खड़ा रहता है वो किससे दुखी होता है? जो लोग गेट में 8 बजे घुसते हैं उससे नहीं होता है दुखी। जो 10 बजे घुसता है उससे भी दुखी नहीं होते। जो 10 बजे के बाद आता है, हमारे यहाँ रात और दिन ये बोलते ना हम लोग, पुराने ज़माने में रात्रि को निशा बोलते थे, अंधकार, और जो रात में चलता हो उसको निशाचर बोला जाता है। जिनको मज़ा आता है खुद भी दुखी रहो और दूसरे को दुखी करो, ऐसे सब लोग रात के 12 बजे के बाद आते हैं, और उनका फिर क्या हाल होता है वो 15% पे धीमे धीमे चले जाते हैं। उन्हीं से दुखी हमारे दीपक दादा, उन्हीं से दुखी हमारे आशीष जी, माता पिता देश राष्ट्र सब दुखी उन्हीं से। पर आपको ये भी ध्यान रखना है
आप 300 दिन यहाँ पर रहोगे और आपका खर्चा करीब करीब 2 लाख से कम नहीं आएगा। ये 2,10,000 हो गया तो 700 रुपये पर डे का खर्चा है आपका। और ये माता पिता कैसे आपके पास ये पैसा भेजते होंगे। और जिस बच्चे ने अपने जीवन में इतना पैसा खर्च किया है उससे चौगुना ना कमाए, ये 2 लाख खर्च किया है तो 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, तब तो अच्छा है। क्योंकि पूरे विश्व में यही माना गया है कि जितना खर्च करो उससे कुछ गुना वहां से प्रारंभ करो। हम यहाँ पे 400 अध्यापक हैं, दिन रात आपकी चिंता करते हैं कि आप कैसे अच्छे पढ़ोगे, कैसे अच्छे बनोगे, कैसे आपके माता पिता तारीफ करें कि भाई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, और आपकी तारीफ सब करेंगे, हमारा बच्चा सबसे अच्छा, खुद ही प्रशंसा करें। माता पिता को झूठ न बोलना पड़े। आज मैं उसी को पुण्यात्मा बोलता हूँ जिसके माता पिता को अपने बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोलना पड़े। मेरा बच्चा बड़ा सीधा है, बीमार हो गया था इसलिए इसके नंबर कम आए। आप कुछ ऐसा करते हो, खुद तो झूठ नहीं बोलते। कोशिश करो कि कम से कम पाप माता पिता को लगे। कोशिश करो कि सबसे कम पाप आपको लगे। आपके शरीर का बल इतना होना चाहिए कि आप 8 घंटे क्लास पर बैठ सको। आपका मन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप 8 घंटे सुन सको किसी व्यक्ति को, हर चीज को आप याद कर सको। आप इतना अच्छा योग करो, आप तो योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, कि जिस चीज को याद करो एक बार में याद हो जाए। यदि आप देखिए कि जब कोई किताब नहीं होती थी उस समय का ज्ञान देखिए, और जब इतनी किताब हो गई है तो आपका ज्ञान कैसा है। किसी ने लिखा भी है, पुस्तकस्य विद्या और हस्तगत वेदना। दूसरे की जेब में रखा हुआ पैसा और पुस्तक की विद्या ये तभी काम आएगी जब ज्ञान आपके पास होगा और धन भी आपके पास होगा। सारी पुस्तकों को पहले अपने मस्तिष्क में लाओ। 400 व्यक्ति दिन रात आपके लिए लगा दिए गए हैं, और 4 वर्ष के अंदर जो जितना पढ़ेगा, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं करीब करीब 10-12 घंटे पढ़ा करता था जब मैं विद्यार्थी था, तो सबसे अधिक आराम करने को मुझे ही मिला। और जो कम पढ़ते थे वो जिंदगी भर बहुत काम करते थे, तब बेचारों को बड़ी कम तनख्वाह मिलती थी। तो जो इस समय 4 वर्ष मेहनत कर लेगा, और कितनी मेहनत कर दी है, 300 दिन 3 घंटे पढ़ो, 1000 से कम हुआ। 1000 घंटे यदि आपने पढ़ लिया, और 4 साल उनकी डिग्री है वो 4000 घंटे। यदि आपको संसार का सबसे बड़ा पद 4000 घंटे मिल गया, तो इसी कारण से मिलेगा कि आपने 3 घंटे प्रतिदिन पढ़े थे। विवेकानंद के बारे में ऐसा कहते कि वो परीक्षा के दिनों में खेला करते थे। किसने कहा तुम्हारी कल परीक्षा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा मैं जो साल भर पढ़ा था उसकी परीक्षा है, आज पढ़ूंगा उसकी परीक्षा नहीं। जो व्यक्ति तैयारी करता है पूरे साल भर, उसकी परीक्षा होती है। और जो व्यक्ति केवल एग्जाम में पढ़ लेंगे, यहाँ तो इतनी परीक्षा होती है 2 दिन पढ़ लेंगे। और अध्यापक को भी परीक्षा का अर्थ ये होता है कि
कि लोगों को पता लगना चाहिए कि परीक्षा क्या होती है। परीक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण लेना हो, एक बहू घर में कितना कितना भी काम अच्छा करे पर सास को खुश नहीं कर सकती। वैसे ही एक विद्यार्थी कितना भी पढ़े, परीक्षक को खुश कर दिया तो वो परीक्षक किसी काम का नहीं। हम अमेरिका में पढ़ाया करते थे तो पहला लेसन हमको यही दिया जाता था, दैट योर स्टूडेंट मस्ट नॉट क्रिटिसाइज यू दैट यू आर ए पुअर एग्जामिनर। आपके क्वेश्चन ऐसे हों, उनको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सका इसलिए मेरा ग्रेड कम हुआ। और पढ़े, प्रश्नों से उसके मन में आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। ये मैंने जब 2000 में वाइस चांसलर बना यूपी टेक्निकल का, तो परीक्षा से जब आईएएस बन सकता है तो परीक्षा से यूनिवर्सिटी अच्छे इंजीनियर भी निकाल सकती है। इतने टफ पेपर कर दिया कि सब लड़के अपने आप पढ़ने लगे। दिस इज ऑल्सो माई रिक्वेस्ट द टीचर्स कि आप इतने जो है सरल मत होइए, अरे बच्चा फेल हो जाएगा, सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप टफ से टफ, यू मस्ट बी इनोवेटिव, हाउ टू फाइंड क्वेश्चंस, लेट देम रिप्लाई, क्योंकि उनको सारा संसार झेलना है। और जो बच्चा अपने इंस्टीट्यूट में टफनेस को फेस करता है उसको संसार में कई टफनेस फेस नहीं करते। और जो यहाँ से चला गया और उसको लगा ही नहीं कि मेरी यूनिवर्सिटी टफ है, उसके लिए संसार को पार करना बहुत मुश्किल है। अविद्या सर्गे तीर्थवा, यदि आपने उसको बना दिया, बेटा तुमको पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। रात भर दादा जगे, मैं तो दादा से कहा मत जगो, आप कह दो ठीक है देखें किसकी हिम्मत है, करो रहेगी, 2-4 को निकाल देंगे, इसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। फियर से नहीं, व्यवस्था से नहीं, हमारे सिस्टम में दम होनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, रैगिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, सोने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ऊधम करने के लिए नहीं आया हूँ। 5 मिनट की लाइट जाती है तो कितना हल्ला मचाते हो। और जीवन में कुछ नहीं आया, अज्ञान का अंधकार होगा तो जिंदगी भर हल्ला मचाओगे। सीखो कि अंधकार कितना खराब होता है। आप स्वार्थी बनो, अध्यापकों के पास जितना ज्ञान है उसको लो, जो नहीं है उसके लिए और प्रयास करो। मैं सबसे कहता हूं कि स्टूडेंट को बहुत सेल्फिश होना चाहिए और उनको इतना अधिक ज्ञान का अर्जन करना चाहिए सेल्फिश होके। जैसे कोई व्यक्ति अमृत पीने जाता है ना, तो उसको लगता है कि इतना पियो कि कभी मरो मत। वैसे ही ज्ञान इतना इनसे लो कि अध्यापक सूख जाए और आप हरे हो जाओ। और ये मेरा 3रा साल है, मेरा 2 साल खत्म। और लोग कहते हैं कि चौहान साहब केवल 2 ही साल भले दिखते हैं, 3रे साल में तो वो 4थे साल की तैयारी करने लगते हैं। This will be the toughest life for this campus because whenever I stay 3rd year in any university, I have given very tough time. आप सबको पढ़ना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, ये मुश्किल है आपके लिए। और अध्यापक, विद्यार्थी, इन सब के लिए चैलेंज है कि तुम पढ़ो और इनको पढ़ाना पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूँ ऐसी तैयारी करो कि संसार का कोई व्यक्ति आपसे इंटरव्यू लेने आए तो ये कहे, आप उससे कहो कि आपके प्रश्नों का मैंने जवाब तो दिया
पर मैं आपसे और कठोर प्रश्नों की अपेक्षा करता हूँ। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, जिस दिन आपका सीना ज्ञान से तनेगा तो आप ये समझ लो कि आपके माता पिता सबसे अधिक खुश होंगे। आपका अध्यापक तो उनसे भी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि अध्यापक को अच्छा लगता है कि उसके ज्ञान की प्रशंसा उसके विद्यार्थी के माध्यम से हो। संसार में दो ही को बेटा कहा गया है, आत्मई वही पुत्र, जो मैंने पैदा किया वो मेरा बेटा है, आत्मई वही शिष्य, जिसको मैंने ज्ञान दिया है वो मेरा पुत्र है। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि बेटा तो कहीं होगा, पर आप जो सामने हो, जो प्रत्यक्ष होता है वो शिष्य होता है, जिससे व्यक्ति इतना मन से उसको पढ़ाता है और उसको लगता है कि मेरे बेटे को तो किसी और ने पढ़ाया होगा, वो उसका गुरु होगा। तो जिसका मैं गुरु हूँ, जिसका मैं अध्यापक हूँ, मेरा दायित्व है कि जब इसका कोई कष्ट आए तो उसको लगे कि नहीं, मेरे टीचर मेरे पीछे खड़े हैं, उनका ज्ञान मेरे पीछे खड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस मेरे पीछे खड़ा है, और मैं किसी भी समस्या को उनके आशीर्वाद से समाधान निकालूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग गौरवान्वित हों, माता पिता के लिए इतना बड़ा नाम कमाएं, और विश्वविद्यालय अपने आप धन्य होगी जिस दिन आप आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ चांसलर सर, प्रोफेसर माहेश्वरी, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर अनूप गुप्ता, श्री नीरज अग्रवाल जी, और रजिस्ट्रार श्री अशोक सिंह जी, all heads of the departments and faculty colleagues, and my dear students. जिस तरह से अभी नीरज जी ने कहा कि अनूप जी के पहले बोलने से ठीक रहता है, तो मैं आज दोनों के बीच में सैंडविच हुआ हूँ। नीरज जी ने बोल लिया और अनूप जी बोलेंगे। दोनों के जो स्पीचेस होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। मैं बीच में हूँ, इसका फायदा है कि आप लोग को जरा सा ईज मिल जाएगा। So let's come back to the purpose of today's program. I, on behalf of GLA University, our Honorable Chancellor, Vice Chancellor, welcome you all to your new family, that is GLA family. GLA family is growing every day, not only in numbers, but in every area of its activities, be it academic excellence, be it placement, be it other activities that are being pursued in this campus. We have expanded in terms of physical infrastructure. This year we have added about 900 more seats in the hostel, and as I said, we are growing every day. So you should be feeling very proud that you have become a member of a family which is very vibrant, which is very dynamic, and which is continuously striving for achieving higher and higher goals. My advice to you all is take full advantage of the time that you are going to spend in this campus. Be it a 2-year MBA program or 3-year diploma program or 4-year BTech and other programs. Take advantage of every minute
use all the facilities that we provide you. If you are hosteler, use the facilities provided in the hostel, playgrounds, library. As all of you know, that we provide 24 hours power supply. That in itself is a very big thing in this area. Go to your class with the sole aim of learning. We have got theory classes which are supplemented with the tutorial classes. There are laboratory assignments. Try to follow each and every instruction that the faculty members and other academic staff will be giving you. We have got very talented, dedicated, motivated faculty members. Interact with them. Try to gain as much knowledge as you can during the class hours, beyond the class hours as you think fit. Do not skip anything thinking that this is not important. As Neeraj was explaining you, and we will be further explaining you in your small classes about your grade requirement to pass, to get first division, to be eligible for placement in good companies. All these things will be explained to you in due course by your faculty members, but try to stick to it. Your aim for next few years should be only one, and that is learning. We will be there with you in every point of time. Do not waste your time. Our registrar has already told you, respect everyone. Your seniors, your own friends, your own colleagues. Everyone who is inside GLA campus, respect them. Because respect is a reciprocal thing. If you respect others, others will respect you. Do not develop any bad habits. If you have some, please get rid of those bad habits as quickly as possible. We do not want to take any punitive action on you. We want you to grow, but at the same time, we have got very strict rules and in some cases zero tolerance for some of the misdeeds that students do. This is a small campus in terms of interaction. Do not think others are not important. This is a time of interdisciplinary work. So please try to understand the importance of each and every discipline that is being offered in this campus. No branch or no department is superior to others. Everyone has got its own place in the society. Our faculty members will always be available to guide you. For first few months, you will be given some hand-holding. Faculty members will guide you to various rooms, laboratories, hostels, buses, and so on. All arrangements have been done. Please follow those instructions. Like you must have seen when you have come to this hall, faculty members have guided you to the place. So I'll end my speech by simply saying that enjoy your life with a purpose. Thank you very much. All of you, the honorable dignitaries, and my dear students. Normally it happens whenever media praises a lot about Sachin Tendulkar, I have seen many times, that he is out at zero, right? So don't worry if I am out at zero. As a teacher, I am in a habit of speaking for 60 minutes continuously. Oh my God, oh my God, are we going to bear in for 60 more minutes? No. Today I am not going to speak for 60 minutes. I will be speaking only for 5 or 10 minutes and will be giving you 5 or 6 major points which you can keep in mind and which can guide you
all through your 4 years or 3 years or 2 years of your stay or sojourn at GLA University. So it is of course very exciting to be at the new place with new teachers, with new friends. But again, it is intimidating too. It is little full of fear also. Why fear? Because now the systems are different. Till now, your teachers expected you to sit silently in the class, to take notes, to listen to them very sincerely. But here in the university, they would like you to speak in the class, to ask questions. It means your active participation will be needed. And then in that way you have to be active participants in the class. Active learner and independent thinker. This you have to be in your stay at GLA. आपको इंडिपेंडेंट थिंकर होना होगा और एक्टिव लर्नर होना होगा. What is the difference, you know, in the Eastern education and Western education is that we still believe in the passive learning. What you are doing is a passive learning. You are listening to all the speakers silently and getting some knowledge. That is passive listening, passive learning. पैसिव लर्निंग का मतलब है आपका गिलास खाली है, किसी के पास बड़ा जग भरा हुआ है ज्ञान का, और उस ज्ञान के जग से आपके गिलास में उसने उड़ेल दिया अपना ज्ञान. और जब आपसे उस ज्ञान के बारे में पूछा जाता है तो आप फिर उस आदमी की तरफ देखने लगते हो, क्या बताया था, इसका क्या जवाब हुआ. वेस्ट में ये फिलॉसफी अब बदल रही है. वेस्ट में है कि एक्टिव लर्निंग. टीचर्स का मानना है कि आपके अंदर ज्ञान अपने आप उपलब्ध है, केवल उसको जगाना भर है. तो अब टीचर का रोल चेंज हो रहा है. अब टीचर भाषण देने वाला टीचर नहीं है, लेक्चर डिलीवर करने वाला टीचर नहीं है. अब वो फैसिलिटेटर है लर्निंग का. अब वो सिर्फ क्लासरूम में लर्निंग को मैनेज करता है. लर्निंग आपके पास है. ये कुछ ऐसा है जैसे आप बल्ब हैं और आपको केवल जलाना भर है, स्विच ऑन करना है. तो टीचर का काम केवल स्विच ऑन करना है. आप सब जानते हैं जितनी भी शक्ति होती है वृक्ष बनने की, वो बीज के अंदर होती है. आप बीज को डाइसेक्ट करके, कोई टीचर उसका ऑपरेट करके उसके अंदर से वृक्ष नहीं बना सकता. टीचर क्या कर सकता है, या कोई भी अच्छा व्यक्ति जो उस बीज से वृक्ष बनाना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि उस बीज को एक फर्टाइल लैंड में फेंक दे और उसको थोड़ा सा सूरज दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, थोड़ी सी हवा दे दे, थोड़ा खाद दे दे, और फिर बीज के अंदर अपने आप को शक्ति होती है कि वो एक अच्छे से अच्छे वृक्ष का रूप ले ले. तो यूनिवर्सिटी भी एक ऐसा प्लेस होती है जहां पर केवल एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है. जब हम आपके लिए अच्छी क्लासरूम बनाते हैं, जब आपके लिए अच्छे टीचर्स रखते हैं, जब आपके लिए लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें रखते हैं, या आपके लिए गेम्स और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देते हैं, या आपके हॉस्टल में आपको खाने पीने की, रहने की ठीक सुविधाएं देते हैं, तो हमें और आपके जैसे एक जैसे बच्चों को जब हम एडमिशन देते हैं तो इसका मतलब है हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ सब एक दूसरे से सीखते चले जाते हैं. तो आपको एक दूसरे से सीखना है. आपको केवल ऐसा कहते हैं, आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती के 4 हाथों में सिर्फ एक हाथ में किताब है. तो ऐसा कहते हैं कि ये केवल आप 25% यू लर्न इन द 4 वॉल ऑफ क्लासरूम. 75% ऑफ योर लर्निंग हैपेंस आउटसाइड द क्लास. और बुरा मत मानिएगा, पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा संबंध केवल किताबी ज्ञान से नहीं है. जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं है उन्होंने जीवन में बहुत बहुत बड़े काम किए हैं. उनके ऊपर ढेरों PhD और ढेरों डीलिट हो गए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा. कबीरदास के ऊपर सैकड़ों PhD हो गए. विलियम शेक्सपियर के ऊपर सैकड़ों PhD और डीलिट हो गए. वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे. और हम तो जब 7वीं 8वीं में थे, 9वीं 10वीं में थे, तब भी पढ़ते थे, जीवनियाँ पढ़ते थे, बहुत सारे कवियों की और बहुत सारे लेखकों की तब ये पढ़ते थे. उन्होंने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद स्वाध्याय से ही घर पे अरबी, फारसी, उर्दू का अध्ययन किया और उसके बाद वो इतने बड़े कवि हो जाते थे. तो आपकी जो लर्निंग है वो केवल क्लासरूम लर्निंग न रह जाए, उसके बाहर भी आपकी लर्निंग हो. आप एक दूसरे से सीखें, आप व्यवहार से सीखें. और जब हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं. आपका जो व्यवहार होता है
वो जो आपका एनवायरनमेंट है उससे जो आपका इंटरेक्शन होता है उसका रिजल्ट होता है। योर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ योर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि आपका व्यवहार कैसे एनवायरनमेंट से हो रहा है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की यहाँ पर सारे लोगों ने कोशिश की है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़, आपको बहुत बहकावे आएंगे, आपको बहुत सारे लालच आएंगे जीवन में। आप ऐसी आयु की एक ऐसी सीमा पर हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। आपको लगेगा ये कितना अच्छा है, इसमें टाइम कितना अच्छा है। दोस्तों के साथ समय बिताना, गप्पे लड़ाना बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ सिनेमा जाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा रोक पाएँ तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। हर चीज़ की उम्र होती है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मनाही है कुछ भी करने की, है ना। आप सब कुछ करेंगे अपने जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति जो भी करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक रिसर्च के बारे में। और एक पहले आपको बता दूँ मैं, एक बार्बी ड्यूपोर्ट ने एक रिसर्च किया था जो क्वांटम लर्निंग में पब्लिश हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि हम जितना भी सीखते हैं उसमें से 10% वी लर्न, और when we learn when we hear। जो कुछ भी हम सुनते हैं उससे केवल 10% हमें याद रह जाता है। तो आज जितना भी हम सब बोल रहे हैं उसका मुश्किल से आप 10% रख पाएंगे अपने पास। और हम 20% सीखते हैं जितना भी हम पढ़ते हैं, ये रिसर्च थी। और 30% हम सीखते हैं जितना हम देखते हैं, और 50% हम सीखते हैं जितना हम देखते और सुनते हैं, जैसे सिनेमा। और 70% आप सीखते हैं जब आप बोलते हैं। तो आपने जितना भी सीखा है उसका 70% आप सीख जाते हैं। और आप 90% यू लर्न व्हेन यू से एंड डू। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी लर्निंग को अप्लाई करना है, वो करके देखना है और बोलना है। और बोलने में आपको हिचकना नहीं है, खूब सवाल पूछिए। एक विद्यार्थी का और एक अच्छे विद्यार्थी का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो क्यूरियस है। और एक्टिव लर्निंग तभी शुरू हो जाती है एज सुन एज यू बिकम क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। जैसे ही आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं, तब आप एक्टिव लर्नर बन जाते हैं। और जब आप सवाल पूछते हैं तब आप एक्टिव लर्नर होते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है, आपके टीचर आपसे बहुत तरीके के सवाल पूछेंगे। वो कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे जिससे वो ये पता लगे उन्हें कि आप असाइनमेंट करके आए कि नहीं। कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। और कुछ सवाल वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि जिससे ये पता लगेगा कि आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय रख सकते हैं कि नहीं। अपनी राय रखना ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। और क्यों इंडिपेंडेंट थिंकिंग ज़रूरी है? जो मॉडर्न कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ा वैल्यू देती हैं ऐसे लोगों को जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करते हैं और जो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि आपको इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएँ मिल सकें, आप ये सारी चीज़ें सीख सकें। तो आप अपने आपको उन लालचों से कैसे रोकेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया वॉल्टर मिशेल ने लेट 1960s में, और उसको कहते हैं मार्शमैलो टेस्ट। मार्शमैलो एक छोटी सी टॉफ़ी होती है जो बड़ी पॉपुलर होती है और बड़ी डेलीशियस और बड़ी टेस्टी होती है। वाइट कलर की छोटी सी टॉफ़ी, दांत में दबाओ तो कच कच करके मज़ा आता है, कभी चूसने में भी कभी काटने में बड़ा एंजॉयमेंट होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपने कॉलीग्स के बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया, और वो बच्चे 4 से लेकर 5-6 साल के बच्चे थे। उन्होंने क्या किया कि 15 कमरों में 15 बच्चों को बैठा दिया अलग अलग, और हर बच्चे के पास गए, और वहाँ वीडियो कैमरे लगे थे। बच्चों को नहीं मालूम था, उनके पेरेंट्स से कंसेंट ले ली गई थी कि आई विल बी रिकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज़ फॉर 15 मिनट्स। पेरेंट्स से परमिशन ले ली थी, पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया, और फिर उन्होंने टेस्ट किया। और वो एक बच्चे के कमरे में गए और उसको एक मार्शमैलो दिया और कहा, हियर इज अ मार्शमैलो, दिस इज योर्स, नाउ यू हैव अ चॉइस, यू कैन ईट इट or you can wait it for next 15 minutes. I will come again, and if you do not eat it, I will give you another marshmallow. So you have a choice to eat this one marshmallow or to wait for another marshmallow for next 15 minutes. बच्चे ने कहा दोनों दो लूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा।
ये सेंटेंस उन्होंने हर बच्चे से कहा, ऑल द 15 स्टूडेंट्स ही टोल्ड द सेम सेंटेंस। और उसके बाद 15 मिनट के लिए वो अपने रूम में आ गए और वीडियो पर देखने लगे। आप चाहें तो YouTube पे मार्शमैलो टेस्ट करके डालेंगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा और आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। एक बच्चा तो मार्शमैलो को देखता है, दाएं बाएं ऐसे देखता है, फिर रख देता है, फिर देखता है, फिर रख देता है। एक बच्चा तो जैसे ही प्रोफेसर साहब बाहर गए और उसने मार्शमैलो खोली और झट से खा ली। एक बच्चा उसके साथ गेम करने लगा, एक बच्चा गुनगुना के अपने गाना गाने लगा। ऐसा कई बार देखा। तो ये हर तीसरा बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा था और एक बच्चा तो बिल्कुल उसने जैसे ही प्रोफेसर साहब गए उसको दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ मुड़ कर दिया, 15 मिनट तक देखूंगे नहीं मार्शमैलो की तरफ। एक बच्चे ने तो खोला, हल्की से चाटी और वापस पैक करके रख दी। तो अलग अलग एक्टिविटीज थी। तो ये तो पहला पार्ट था, यानी कुछ ईटर्स थे, कुछ रेजिस्टर्स थे, कुछ रेजिस्ट कर पाए उस बात को, है ना, रोक पाए। ये प्रयोग का पहला पार्ट था। प्रयोग का दूसरा पार्ट क्या था कि उन प्रोफेसर साहब ने, वॉल्टर मिशेल ने, उस साइकोलॉजिस्ट ने आने वाले 10 सालों तक उन सारे 15 बच्चों का अध्ययन किया और उसने ये पाया कि जिन लोगों ने भी अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया था, देर तक रेजिस्ट किया था और उसकी तरफ नहीं देखा था, और जिन्होंने उसको खा लिया था, उनके व्यवहार में और उनके अकम्पलिशमेंट में अंतर था। उन्होंने ये पाया कि जिस बच्चे ने तुरंत ट्रॉफी खा ली थी वो तो तीसरी क्लास में फेल हो गया एक बार, और जिस बच्चे ने देर में खाई थी वो अच्छा काम कर रहा था लाइफ में, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहा था, उसकी जो रिलेशनशिप थी अपने दोस्तों से, सोशल बिहेवियर था, वो भी अच्छा था। और ये देखा गया कि सेट के स्कोर में भी उन बच्चों के जिन्होंने रेजिस्ट किया था, उनके जो मार्क्स थे वो एवरेज मार्क्स बेटर थे। और इस सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हायर गोल्स के लिए अगर आप लोअर गोल्स को सैक्रिफाइस करते हैं तो यू कैन इजीली अचीव हायर गोल्स। और हमें कब पता लगता है कि हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हायर गोल्स को? वो हमें तब पता लगता है जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप सोचिए मत ज़्यादा। आप ना तो पास्ट के बारे में सोचिए, काश मैं इतना पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, काश मैं ऐसा कर लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पास्ट अब लौट के नहीं आ सकता। सो डू नॉट वरी अबाउट और डू नॉट रिपेंट अबाउट द पास्ट, एंड प्लीज डू नॉट वरी अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर तो आया ही नहीं, उसके बारे में चिंता करने से फायदा क्या? तो बेहतर क्या है? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो प्रेजेंट मोमेंट ही कुछ पल के बाद पास्ट बन जाता है। So if you are happy in the present moment, next moment your present becomes the past and your past becomes happy. And normally we take our decisions in our life on the basis of our past experience. तो पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हमारा प्रेजेंट खुश है तो पास्ट खुश हो जाएगा, और पास्ट खुश है तो उससे हम एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर को भी अच्छा बना लेंगे। सो यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर और पास्ट के बारे में बस आप इतना कर सकते हैं, जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू में देख लेते हैं कि क्या आ रहा है पीछे से, दैट्स ऑल। और फ्यूचर हमें पता है कि दिल्ली है तो दिल्ली का नक्शा लेके हम दिल्ली को देख के नहीं चलते हैं, हम तो प्रेजेंट को देखकर चलते हैं और धीरे धीरे दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो आप भी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक मोनेस्ट्री थी। मोनेस्ट्री समझते हैं ना, मठ। उस मठ में सन्यासी थे, बहुत सारे मंक थे। तो एक मंक खाना खाकर बर्तन धोने जा रहा था, और जब वो बर्तन धोने जा रहा था तो उसने देखा कि उसके जो मास्टर हैं, मंक के जो मेन टीचर हैं, वो एक पेड़ के नीचे खाली बैठे हुए हैं। नॉर्मली मास्टर खाली नहीं मिलते थे, वो हमेशा व्यस्त रहते थे। तो उसने सोचा आज तो मास्टर खाली हैं, आज तो इनसे जिंदगी के सबसे बड़े बड़े सवाल पूछ लेता हूँ। वो गया मास्टर के पास और बड़ा सीरियस होकर बोला, मास्टर मे आई आस्क अ क्वेश्चन? मास्टर बोले यस यू कैन। और उसने कहा, मास्टर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज लाइफ आफ्टर ऑल? जीवन क्या है? जीवन का मतलब क्या है? और मास्टर ने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया। मास्टर ने उससे पूछा, हैव यू टेकन योर लंच? खाना खा लिया क्या? उसने कहा हाँ। और मास्टर ने कहा तो जाओ जाके बर्तन धो। उसके समझ में नहीं आया ये क्या बात हुई। मास्टर बचना चाह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब देने से, या इनको आता नहीं है, या ये ऐसे बहका रहे हैं?
जब वो बर्तन धो रहा था तो बर्तन धोते धोते उसको समझ में आया कि मास्टर ऐसे तो जवाब नहीं देंगे, ऐसे तो टरकाएंगे नहीं, ऐसे तो टालेंगे नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ गुप्त आंसर उन्होंने गूढ़ आंसर दिया होगा। और उसने फिर सोचा और उसके समझ में आया कि जिस समय जो काम करना चाहिए उसी काम को करना जीवन है, और इस जीवन को करते करते आपको सारे रहस्य समझ में आने लगते हैं। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपको पढ़ाई समझ में आएगी, और आप देखेंगे कि पढ़ाई करते करते ही आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं, और ये आपको पता ही नहीं लगेंगे। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया उनको तो पता नहीं लगेगा। तो पहले इस्तेमाल करना शुरू करिए और फिर आपको पता लगेगा ये मेरी लिमिटेशंस हैं, और फिर आप उन लिमिटेशंस को पुश करना शुरू कर दीजिए, और आप ये मान लीजिए कि देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर योर पोटेंशियलिटीज टू डेवलप। जो आपकी लिमिट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ये हमारे प्री कंसीव नोशन होते हैं जिसमें हम बंध जाते हैं, हमें लगता है हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप नई सोच के साथ आइए और देखिए कि हम ऐसा कर सकते हैं और आप कर पाएंगे। लास्ट में बस एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा आपने देखा होगा लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, और हम चिल्लाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ के लिए, है ना। शिक्षा का राइट है, बोलने का राइट है हमें, है ना, आज़ादी का राइट है हमें, वोटिंग का राइट है हमें, बहुत सारे राइट्स हैं। लेकिन एक आर्टिकल 51 है जिसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। उन फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत सारी ड्यूटीज लिखी हैं, ABCDEF। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जे जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जे पॉइंट सुनाता हूँ, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाइफ में बड़ा सारा चेंज हो सकता है। जे पॉइंट कहता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल so that the nation rises to a higher level of accomplishment and achievement। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें एक्सीलेंस के लिए लगातार संघर्ष करते रहना है। हमें लगातार संघर्ष करना है कि हम एक्सीलेंस को पालें, और ऐसा नहीं कि एक्सीलेंस पाने के लिए आपने सोच लिया कि मुझे सचिन तेंदुलकर ही बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन ही बनना है, या मुझे लता मंगेशकर बनना है, या मुझे माइकल शूमाकर बनना है। ये नहीं है। एक्सीलेंस का आगे उन्होंने डेफिनेशन दिया है। व्हाट डज एक्सीलेंस मीन? वो कहते हैं एक्सीलेंस मीन्स, एक तो ये कहते हैं कि डूइंग समथिंग होल हार्टेडली, पूरे मन से किसी काम को करना, नॉट हाफ हार्टेडली। किसी भी काम को आप हाफ हार्टेडली मत करिए। हाफ हार्टेडली करने से इससे बढ़िया उस काम को करिए ही मत। इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी डिग्री लेने आए हैं तो पूरे मन से करिए, आधे मन से कर रहे हैं तो मत करिए। इससे अच्छा है कि ना करें, क्योंकि फिर उसमें आपका मन नहीं लगता है। उसमें लिखा है कि एक्सीलेंस मीन्स सरपासिंग योर प्रीवियस वर्च्यू, मेरिट एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। यानी जो आपने ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया था लास्ट, जो आपने आपके अंदर वर्च्यू है, जो आपकी ऑनेस्टी है, उसको सरपास कर देना, उससे आगे निकल जाना। मैं अगर आज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और 25 मिनट में दौड़ सकता हूँ, तो क्या कल मैं 5 किलोमीटर से थोड़ा और दौड़ सकता हूँ? और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी क्षमताएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो देयर इज नो एंड टू योर लिमिट्स। आई विश दैट ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू compete with your former self. There is nothing being noble about being superior to others. दूसरों से श्रेष्ठता में कोई श्रेष्ठता नहीं है। The true nobility lies in being superior to your former self. आप जो कल थे, आप उससे बेहतर आज कितना हो रहे हैं, इसमें ही असली महानता है। तो आप किसी दूसरे से कम्पीट मत करिए, आप खुद से कम्पीट करिए, खुद से मेहनत करिए, और खुद से अपना कॉम्पिटिशन जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन आप नई ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे हैं। तो ये 3-4 बातें, एक्टिव लर्नर, इंडिपेंडेंट थिंकर, स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, इनको आप ध्यान रखेंगे और अपनी रिलेशनशिप को अच्छा रखेंगे, इस एनवायरनमेंट का पूरा लाभ उठाएंगे। वी ऑल आर all the time for you, with you, right? You can come to us anytime. Thank you. Hi friends, myself Simran Gupta. I am a first year student of BTech from CS. I am studying in GLA now and I got admission. I have come from the 15,000 student and got admission in GLA. And the faculties are very good. I am a hostler and the mess and the wardens, everybody is really nice. The faculties are very good and they are helping you in every way, in a teaching. When you want to ask anything, you can ask it.
There is no problem. It is a ragging-free campus. Over the 17 years, it has earned many reputation and it's really a very good college. I really want to join it. भारत भाग्य विधाता